हेलो फ्रेंड्स, रिकी चड्डा वंस अगेन। क्या आप अपने आप को जानना चाहते हो? डू यू वांट टू नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई begin with this video or my topic, I would like to thank Mr. Kapil Raj, one of my guru. I'm referring to him because this is exactly what I have learned. How do you know yourself through your horoscope? You just need to do only one thing. आप सिर्फ अपना horoscope, you take your horoscope, just keep it in front of you. I'm talking about the D1 chart, that's the Lagna chart. The Lagna chart में whenever you see where there is more than 2 planets, it could be 3, it could be 4, it could be many, well, not more than 9 of course, but then if there is more than 2 planets at that particular area, what I want to explain to you in a while, मैं थोड़ी देर में जो समझाने जा रहा हूं आपको, अगर वहां पर ग्रह है आपके बैठे हुए हैं, प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अगर एक से अधिक 3-4 अगर उस जगह पे जहां मैं आपको बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं है, तो हम कैसे समझें, हाउ डू वी नो कि हमारा हम क्या है, व्हाट इज द इनर यू और इनर अस. So let us understand, looking at this particular the charts that I have given you on this particular board. See, it reads how to know your inner self. You open your chart, आप अपना horoscope को open कीजिए, and if you see here house number 1, 2 and 12, अगर ज्यादातर ग्रह आपके यहां बैठे हुए हैं, that means if there are more than 2 planets, 3 or 4, only within second, first and 12th house, it talks about yourself. It is yourself because ये एरिया आपके खुद का है, it is you. अगर ऐसे 2-3 प्लैनेट बैठे हैं तो it will tell you about that you are very independent, self-motivated, very focused, full of passion. You are a self-starter and you will rise with your own efforts. So it's a rise with her or his own effort. अगर आपके planets, now come to the next one, the inner world. What is your inner world? आपकी दुनिया कहाँ है? पूरा फोकस आपकी जो दुनिया आपने जो बना के रखी है वो कहाँ है? If you look at your 3rd house, 4th house and 5th house, see, I have also given you the first house is yourself, self efforts, and here it is isolated. जब आप पूरी तरह से आइसोलेट होकर के अपने आप को, सेल्फ को पूरे एफर्ट्स डालते हैं, तो then you are self motivated and focused. उसी तरह से when you come over here, what is your inner world? Your inner world, if it falls, if there are more than 2 or 3 planets over here in the 3rd house, 4th house and 5th house, the 3rd house talks about your neighborhood, your vicinity. The 4th house is your home, domestic happiness is from here, and 5th house is of children. ऐसे व्यक्ति, if you are one of the person, then what will happen? This talks about your inner world. ये possible है कि आपके 3 प्लैनेट यहां बैठे हो, 3 प्लैनेट यहां पे भी बैठे हो, मतलब 2 पर्सनालिटी का समावेश है यहां पे. इट इज टुगेदर. यू लव बीइंग होम. आपको घर रहना बहुत पसंद है, और अगर आप मान लो ये भी है और ये भी हो, तो जैसे ही आप काम से छूटते हो, आप कहीं नहीं जाकर के सबसे पहले घर को पहुंचते हो. यू आर वेरी ईगर टू मीट योर पीपल. कुछ लोग होते हैं जो घर का काम से निकल के दोस्तों यारों के साथ यहाँ वहां भटक रहे हैं. इस तरह की नेचर आपकी बिल्कुल नहीं हो सकती. तो इट इज योर इनर वर्ल्ड. आपको खुशी कहां मिलती है? इट इज डोमेस्टिक अफेयर, होम, बिजनेस एंड कंसल्टेंट. आप ज्यादातर ये ऐसा काम करना पसंद करोगे जो मैं घर से बैठ के कर सकूं.
ऐसे लोग फ्रीलांसर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो आजकल तो सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको वर्क ऑफ होम बहुत सूट कर रहा है, दे आर वेरी हैप्पी टू बी द फैमिली। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल, जिनको बिल्कुल सफोकेशन लग रहा है कि मुझे बाहर निकलने को नहीं मिल रहा, दैट दे कैन नॉट परफॉर्म। सो इफ इट इज this personality or this personality, try to understand. Now others, here आपके अलावा ये सेल्फ है, ये आपकी अंदर की दुनिया है, और ये आपकी बाहर की दुनिया है, विच इज दूसरे लोग, अदर्स। अगर आपके ज्यादातर प्लैनेट्स, 2 से ज्यादा प्लैनेट्स अगर आपके छठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में बैठे हैं, यानी कि 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, इट टॉक्स अबाउट 6th हाउस इज सर्विस, 7th हाउस इज पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप ऑफ एनी टाइप, एंड देन 8th इज इवन योर इन-लॉज। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू ऑलवेज सीक वैलिडेशन, हर चीज के लिए आप लोगों से पूछोगे। they lack drive, they like the confidence, they like the drive in them. They shy away from everything. They are too dependent on the co-worker, मतलब इस जगह पे, सर्विस की जगह पे वो दूसरों पे बहुत निर्भर करते हैं, खुद से कुछ नहीं कर पाते, दूसरों के साथ ही वो कुछ कर पाते हैं, स्पाउस पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, कि मतलब ऐसा देखा गया है कि लाइक some people are like they are very happy being home, the spouse is working somewhere else. Okay, तो कहीं बाहर निकल के काम करती है, they will do everything at home, ऐसी बात नहीं है, and they are also dependent on their in-laws. अगर ज्यादातर घर आपका, ज्यादातर प्लैनेट्स आपके इस जगह पर बैठे हैं, तो आउटर वर्ल्ड, आपकी बाहर की दुनिया, अब ये जो व्यक्ति हैं, आप देखोगे इनके प्लैनेट्स 9th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में है। 9th हाउस इज हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन, काफी कुछ हायर स्टडी कर लिया है इन्होंने। दे लाइक टू डील विद पीपल, बाहर निकल के पीपल से डील करना पसंद है, और इनकम और सोशल गैदरिंग इनको बहुत पसंद है। अब ऐसे लोग जो होते हैं वो वर्कहोलिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम में फोकस रहते हैं, कभी कभी परिवार को पूरी तरह से भूल जाते हैं। दे लैक पीस ऑफ माइंड, कभी भी मतलब ना एक सुकून नहीं मिलता हमको, इनकी जद्दोजहद हमेशा चालू रहती है। दे लाइक टू बी द बिग बॉस, एवरीबडी रिपोर्टिंग टू मी, एंड दे आर करियर ओरिएंटेड, करियर ड्रिवन। मैं फिर से बता दूं, हो सकता है कि आपके मान लो आपके चार्ट के अंदर ज्यादातर घर यहां, मतलब इसमें बैठे हैं और यहां पे बैठे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है, ये सेल्फ भी है और अदर्स भी है। तो आपके अंदर कुछ ऐसे होगा कि आप कुछ चीजों को में आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो, लेकिन फिर किसी वजह से आप थोड़े बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो अपने पार्टनर्स पे। अभी अगर ऐसे ग्रह बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ग्रह है इस तरह से बैठे हैं, तो व्हाट विल हैपन, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड यू आर टू मच फोकस्ड। ये थोड़ा सा गड़बड़ी मामला हो जाता है, बिकॉज उसमें आप हो, आप ही हो, और फैमिली पूरी तरह से, ये जो पूरा घर है ये पूरा आपका खाली रह जाता है। ठीक है, देन पीपल विल कंप्लेन कि ही डजंट गेट बैक होम, इसको खाली पैसा कमाने से मतलब है, एंड ऑल दोस थिंग्स स्टार्ट्स। अगर आपका ये घर और ये घर अगर मैच कर जाए, देखिए दिस इज अ मर्जर, यू हैव टू जस्ट मर्ज एवरीथिंग एंड सी कौन से ग्रह कहां बैठे हैं आपके, तो उसी तरह से आपका इनर वर्ल्ड तो रहेगा, घर दुनिया रहेगी। अब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि अगर आपकी अंदर की दुनिया और ये दुनिया, मतलब सारे के सारा ये वाला हिस्सा आपका भरा हुआ है, ये देखिए ये वाला पूरा भरा हुआ है, देन यू आर टिपिकली डिपेंडेंट एंड अ होमली पर्सन पूरी तरह से। ये दो कॉम्बिनेशन ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये और ये भी हो सकता है कि आप घर को भी संभालते हो और बाहर को भी अच्छे से संभाल लेते हो। दैट मीन्स यू आर वर्कहोलिक ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम यू गेट बैक होम एंड यू ट्राई टू गिव, मतलब क्वालिटी टाइम आप घर पर भी देते हो और वही टाइम आप अपने काम को भी देते हो। तो ये सब चीजों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना होगा कि किस तरह की पर्सनालिटी आपकी बन के निकल के आ रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग
Okay, and once again I would want to thank Mr. Kapil Raj for such a beautiful explanation, and I just wanted to, मैं अपनी तरफ से इस चीज़ को, इस ज्ञान को बांटना चाहता था, तो इसी वजह से थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, साइनिंग ऑफ, एंड try and remove your horoscope and see whether आपकी पर्सनालिटी इसमें से कौन सी है. पहले मैं अपनी चेक कर लेता हूँ. थैंक यू सो मच. बाय.